Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. So yesterday we had posted a video on Hemisphere Properties where we had discussed about its support and resistance levels. So you can check that video out in case you are holding that stock in your portfolio. So today we are going to discuss our first investment grade stock, which we believe can give around 20 to 25% returns in the next few months, provided it gives a breakout of the pattern that we are going to discuss with you right now. So the stock that we are discussing today is SAIL, Steel Authority of India Limited. The reason for covering this stock is that it is making a falling wedge pattern on its daily charts. We are analyzing daily charts of SAIL today. So what are the main characteristics of this particular pattern? The main characteristics are that it is formed first of all by connecting lower highs, and the upper trend line of the pattern is formed by connecting lower highs, and the lower trend line is formed by connecting lower lows. So you can see that this high was around 131.80, then this high was around 113.65, and then this high was around 106.70. So we have connected lower highs to form this upper trend line. In the case of lower trend line, this low was around 105, then this low was 100, and the recent low was around 94.15. So this line has been formed by connecting lower lows. So this is the main characteristic of this particular pattern. Secondly, the price should get operated within the narrow range as the time passes. So you can see that earlier SAIL was operating within a larger range. Now this particular range is getting contracted. And another important characteristic of this pattern is that it is formed in a downtrend. So you can see that SAIL was in a kind of downtrend since 6th of August 2021. So this kind of a pattern should get formed in a downtrend. So we can see that a kind of falling wedge is getting formed in SAIL's daily chart, and on the basis of this pattern we are going to make some projections for SAIL as to where it can go in the medium to long term period. So we have assumed that SAIL will give a breakout of this upper trend line at a price of 104 rupees. It can also give a breakout at 103, 102, that we will come to know only in the future. But for the sake of assumption, we have assumed that SAIL can give a breakout of this upper trend line at a price of 104. So if SAIL gives a breakout at this price, the possible target would come around to be 134 rupees. How? We will have to identify the width of the wedge that we have already determined using the price range tool available in Zerodha or Trading View. So you need to add this width of the wedge to the breakout price. So if breakout price is 104, the target is coming around to be 134. If the breakout price turns out to be 103, the target will be 133. If it turns out to be 100, the target will be 130. So you can say that SAIL can touch anywhere the price of 130 to 135 maybe in the next few months, because this pattern has taken around 4 to 5 months to get formed. You can see that the pattern started in the month of September, or you can see that we have taken the low that got formed on 20th of September. So September, October, November, December, January, February, almost 6 months. And we are not sure as to when the breakout will actually come. However, since the price is getting contracted, so the breakout should occur soon if this pattern has to work. Please note that the breakout should occur above this line, and it should get hold by the stock for a period of 2 to 3 days for the breakout to be valid. Similarly, if this line is broken by the stock on the downside, then this falling wedge pattern will get failed. Also, when the breakout of this particular trend line will occur, it should be supported by heavy volume for the breakout to be valid. So what is the precondition for the target of 130 to 135, or what are the preconditions? You can say, first of all, this particular line should be should be broken by the stock on the upside and held by the breakout should be held by the stock for a period of 2 to 3 days. This particular trend line should not be broken by the stock and held for a period of 2 to 3 days, because in that case we can see further downside in this particular stock. Another condition is that the breakout should occur soon, because the range is getting narrower day by
day. So the breakout can occur at any price. It can be 104, 103, 101. That we will have to see. The possible target will come around to be in the range of 130 to 135 rupees. So in case you have any concerns, queries or suggestions relating to this pattern or this particular stock, you can discuss with them and post your comments in the comment section and we will reply to them ASAP. So now we will be moving on to the Hindi version of the video. Kindly stay tuned. हेलो मेंबर्स, मैं अमन बोल रहा हूँ अपमू स्टॉक से। कल हम लोगों ने हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उसके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो। अदरवाइज अपने एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पहला अपना इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। नॉर्मली हम रिकमेंडेशंस नहीं करते हैं और इस वीडियो के थ्रू भी हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन ना बनाए हमारे वीडियोस के बेसिस पे, क्योंकि हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। इसमें आप डिफर भी कर सकते हैं हमसे और हम लोग कंप्लीटली गलत भी हो सकते हैं। तो सेल हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फॉलिंग वेज बन रहा है इसके डेली चार्ट्स पे, जो कि हमने सितंबर के लो से लेके शुरू किया है और अभी ये यहाँ तक पहुंच चुका है। इस पर्टिकुलर पैटर्न की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये इसकी जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन देख रहे हैं, ये लोअर हाइस को कनेक्ट करके बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला हाई था वो 131 रुपये 80 पैसे था, फिर जो ये हाई था ये 113 रुपये 65 पैसे था, फिर जो ये हाई था ये ऑलमोस्ट 106 रुपये 70 पैसे था। तो लोअर हाइज को कनेक्ट करके ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो लोअर लोस को कनेक्ट करके बनाई जाती है। जो पहला लो था वो 105 रुपए का था, दूसरा लो था वो 99.25 का था, 99 रुपये 25 पैसे का, और जो रिसेंट लो स्टॉक ने बनाया हुआ है 94 रुपये 15 पैसे का। बट अब देखने वाली बात यह कि अब देखिए कि जो रेंज है स्टॉक की वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम होती जा रही है। पहले ये स्टॉक कितनी बड़ी रेंज में मूव कर रहा था, अब ये स्टॉक थोड़ी कम रेंज में मूव कर रहा है। तो फॉलिंग वेज हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है तो ज्यादा यूजफुल होता है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक तरह के डाउन ट्रेंड में ही था। इसने 30 जुलाई को 143 रुपए का हाई बनाया था, उसके बाद ये नीचे गिरता रहा और फिर अभी एक ऐसा ये पैटर्न अपने डेली चार्ट्स में बना रहा है। तो ये सक्सेसफुल कब होगा ये पैटर्न? जब ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ देगा स्टॉक और इसके ऊपर क्लोज करना बंद कर देगा। अगर ये नीचे वाली लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ बंद करना शुरू कर देगा तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा और फिर हमें स्टॉक में फर्दर डाउन साइड भी नजर आ सकता है। बट फॉलिंग वेज अगर सक्सेसफुल होता है तो इसको वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। मतलब जिस दिन इस लाइन का ब्रेकआउट आएगा उस दिन सेल में अच्छी वॉल्यूम भी आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट शायद कुछ हद तक सक्सेसफुल है। हालांकि हमें कंफर्मेशन अगले 2-3 दिन के बाद ही मिलती है जब स्टॉक इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देगा। तो इस पैटर्न के बेसिस पे स्टॉक कहां तक जा सकता है? देखिए हमने ये एज्यूम किया है कि स्टॉक 104 रुपए का अगर ब्रेकआउट देता है, 104 रुपए की प्राइस का ब्रेकआउट देता है तो 134 रुपए तक जा सकता है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? 104 रुपए सिर्फ एज्यूम किया गया, ये गलत भी हो सकती है, मतलब कुछ और प्राइस भी हो सकती है, 103, 102, 100 कहीं पे भी हो सकती है, नीचे तो जा रहा है ये, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच करे फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो ये प्राइस सिर्फ एक एजम्पशन है। हालांकि जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो अराउंड 30 रुपीज निकल कर आ रहा है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो। कैसे? हमें विड्थ लेनी पड़ती है फॉलिंग वेज पैटर्न की, तो वो 30 रुपए निकल कर आ रही है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो आपको उस ब्रेकआउट प्राइस में ये 30 रुपए को ऐड कर देना है। तो अगर ब्रेकआउट 104 रुपए पे आता है तो टारगेट 134 रुपए होगा। अगर ब्रेकआउट 100 रुपए पे आता है तो टारगेट 130 रुपए निकल कर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 25 से 30% तक का रिटर्न हमें स्टॉक में मिल सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पैटर्न को लगभग 6 महीने लगे हैं बनने में और अभी ब्रेकआउट आया भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े दिन यही खींचता रहे स्टॉक को और नैरो करे रेंज को और फिर ब्रेकआउट दे। और वैसे भी अभी थोड़ी जो इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि वॉर के भी चांसेस हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी आने वाली हैं आने वाले दिनों में। तो स्टॉक्स में ऊपर नीचे की मूवमेंट्स आएंगी। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और कंसल्टेंट को डिस्कशन में लेकर ही बनाएं। तो जब तक स्टॉक इस प्राइस लाइन के ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करता तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट इस स्टॉक को यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक एक और
लोअर सपोर्ट बनाए और उसके बाद ऊपर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ टच करे, फिर यहाँ धीरे धीरे वापस आए 90-90 तक आए, फिर इसका ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर जाए। तो एडवाइजेबल यही है कि ब्रेकआउट आने का वेट किया जाए और तब तक स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, और जब ब्रेकआउट आ जाए अच्छी वॉल्यूम के साथ और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करना शुरू करे, तब आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक से फर्दर, मतलब फर्दर अपसाइड मूवमेंट में, फर्दर अपसाइड मूवमेंट की। तो जो पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ इसको मिलेगा वो निकल कर आ रहा है 108 109 रुपए के अराउंड, उसके बाद 113 114 रुपए के अराउंड, फिर ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम चेंज करते रहेंगे अपने लेवल्स को, फिर 118 रुपए, मतलब ये चेंज होता जाएगा। इसलिए 130 रुपए का टारगेट एकदम से नहीं आएगा, इसलिए टारगेट को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बोला गया है। 134 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो जिस दिन ये ब्रेकआउट अकर होगा और अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए फर्दर अपडेट्स के साथ। तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अगर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सो दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।